Good morning, students. Today I shall explain you the story of the story of Pride and Prejudice. This story is taken from the novel Pride and Prejudice, which is written by Jane Austen. Jane Austen is related United Kingdom and her language is English. This novel is published on 28 January. This novel was published on 28 January 1813 and it is based on Sense and Sensibility, Neighborhood and Community. So, this novel opens with the Bennet's family in Longbourn and their 5 unmarried daughters. The family itself is not nearly as rich as those they interact with, and because they have no sons, the novel the novel presents Elizabeth as the protagonist of the story, and Lady Catherine, Mr. Collins, patroness, commands, and a particular type of characters in the story. Mrs. Bennet, whose most ambition whose the most ambition was to marry her daughters in wealthy family. So now let's discuss about the story of the novel Pride and Prejudice. It is a short story that is taken from the novel. Here the story is not in detail. It is a short part of a novel. So let's start today's topic. Read a comic strip adapted from an extract of the famous novel Pride and Prejudice. Here, read a comic strip. This story is based on comic strip. Have you ever read any comic? You know easily that in comics, same pictures and you can see pictures and dialogues of the characters like this way that is seen in this story. Now read a comic strip adapted from an extract of the famous novel Pride and Prejudice. First of all, I want to clear the meaning of Pride and Prejudice. What do you know Pride and Prejudice? First, pride. Pride is unreasonable feeling. Pride is unreasonable feeling, and we can say that a feeling of deep pleasure or satisfaction derived from one's own achievements. But here, Jane Austen represents pride in negative feeling. And prejudice is also represent in negative feeling. It is a strong feeling for somebody and something on based caste, creed, religion, etc. You can say that and we can say that prejudice against people from different backgrounds. Prejudice against people from different backgrounds, and in simple words we can say that prejudice is the strong feeling for somebody and something based on caste, creed, religion, etc.
So now pride and prejudice both are negative feelings here in the story. Let's start today's topic. Ever since his arrival in the neighborhood, जब से वो पड़ोस में आया है, his arrival, उसकी arrival, जब से वो पड़ोस में रहने आया है, Mrs. Bennet fondly hoped that her eldest daughter Jane would attract the attention of the wealthy Mr. Bingley. मीन्स जब से जो मतलब यहाँ पर जो बीनेट फैमिली है, एज यू नो आई हैव ऑलरेडी क्लियर दैट थिंग, मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि जो ये स्टोरी है, ये जो नोवेल है, यहाँ पर जो बीनेट फैमिली है उसके इर्द गिर्द पूरी स्टोरी जो है वो घूमती है। तो जब से मिसेस बीनेट और मिस्टर बीनेट के पड़ोस में मिस्टर बिंगले रहने के लिए आए हैं, जभी से मिसेस बीनेट फॉन्डली होप्ड मीन्स बहुत ज़्यादा उनकी विश है, बहुत मतलब एक्सट्रीमली वो इस बात को चाहती हैं कि उनकी सबसे बड़ी डॉटर जेन जो है वो क्या करे, मिस्टर बिंगले को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ किसी भी तरह से। जब वो अट्रैक्ट हो जाएंगे, मिस्टर बिंगले जेन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो उसको प्रपोज करेंगे, तो दोनों की क्या हो जाएगी, मैरिज हो जाएगी। नाउ इन द पिक्चर यू कैन सी this lady is Mrs. Bennet. This is you can see the picture of a girl who is Jane and she is Elizabeth. So now you can see that she is Mrs. Bennet, she is Jane, and she is Elizabeth, the second daughter of Mrs. Bennet. Now, he is the messenger. You can see that you can see this figure. Yeah, he is a messenger. By this line, you clear the meaning that Mrs. Bennet जो हैं उनकी ये इच्छा है, उनकी यह विश है कि किसी भी तरीके से जेन की शादी किससे हो जाए, बिंगले से हो जाए, मिस्टर बिंगले जो उनके पड़ोस में रहने आए नीदरफील्ड में। और ये जो बीनेट फैमिली है वो कहाँ रहती है, लॉन्गबर्न में। वेल जेन हु इज़ इट फ्रॉम, वेल जेन मतलब अच्छा जेन कौन है, व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किसके बारे में है, व्हाट डज ही से, उसने क्या कहा है, मेक हेस्ट एंड टेल अस, जल्दी करो और मुझे बताओ। मैंने आपको यहाँ बताया ना कि ये जो मैसेंजर है ये एक लेटर लेकर आया है, तो उसकी मदर जो है मिसेस बीनेट वो पूछ रही हैं कि ये जो लेटर है वो कहाँ से आया है, किसके बारे में है, और उसने इस लेटर में क्या कहा है, जल्दी करो और मुझे बताओ। Now this is the letter. My dear friend, मेरी प्रिय फ्रेंड, if you are not so compassionate as to dine today with Lucia and me, जो बिंगले की सिस्टर्स हैं, 2 सिस्टर्स, I have already told you, मिस्टर बिंगले जो हैं उनकी 2 सिस्टर्स हैं, 1 सिस्टर इज़ मैरिड एंड सेकेंड सिस्टर इज़ अनमैरिड। तो उनकी जो कैरोलिन बिंगले जो अनमैरिड सिस्टर है उसने ये लेटर लिखा है, और उसने लिखा है कि उन्हें इफ़ यू आर सो कंपैशनेट एज टू डाइन टुडे विद लूशिया एंड मी, वी शैल बी इन डेंजर ऑफ हेटिंग ईच अदर फॉर द रेस्ट ऑफ आवर लाइफ्स। मीन्स यहाँ पर जो उनकी सिस्टर है वो लिख रही है जेन के लिए कि मेरी प्रिय फ्रेंड, हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा कि यदि तुम आज डिनर पर हमारे घर आओ, क्योंकि लूसिया और मैं दोनों घर पर क्या हैं, अकेले हैं, और वी शैल बी इन डेंजर ऑफ हेटिंग ईच अदर, मीन्स हम तुमसे मतलब तुम हमें पसंद ना करो ऐसा हम खतरा मोल नहीं ले सकते। फॉर अ होल डेज टेट
टेट अ टेट मीन्स बेटा पर्सनली कन्वर्सेशन, फेस टू फेस मीटिंग। टेट अ टेट मीन्स फेस टू फेस मीटिंग या फिर पर्सनली कन्वर्सेशन। तो वो कह रही है यहाँ पर सिस्टर जो है कि आज हम आपसे फेस टू फेस बात करना चाहते हैं। बिटवीन टू वुमेन कैन नेवर एंड विद अ क्वेरल मीन्स ऐसी मीटिंग रखना चाहते हैं जो कभी भी क्वेरल के साथ ख़त्म ना हो, हमेशा मतलब हमारा जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छा बना रहे। कम एज सुन एज यू कैन ऑन रेस्पाइट ऑफ दिस माई ब्रदर एंड द जेंटलमैन आर टू डाइन विद द ऑफिसर्स। मतलब उसने कहा है, उसकी सिस्टर ने, कैरोलिन बिंगले ने, कि जितना जल्दी पॉसिबल हो सके तुम उतनी जल्दी पहुंच जाओ, क्योंकि मेरे भाई और जो सेकंड जेंटलमैन जो उसके फ्रेंड थे ना, फ्रेंड कौन है, फ्रेंड का नेम कैन यू टेल मी द फ्रेंड्स नेम? I have already told you in yesterday video, in yesterday period. Okay, the friend's name फिट्ज़विलियम। तो जो फिट्ज़विलियम है और जो मिस्टर बिंगले हैं वो अपने ऑफिसर्स के साथ डिनर करने गए हैं और आज का डिनर हम तुम्हारे साथ करना चाहते हैं। योर एवर कैरोलिन बिंगले सॉरी। तो यहाँ पर जो कैरोलिन बिंगले हैं उन्होंने लेटर लिखा है और उनकी सिस्टर ने, हर्ष ने, कि जेन जितना जल्दी पॉसिबल हो सके तुम घर आ जाओ, हम तुम्हारे साथ डिनर करना चाहते हैं और फेस टू फेस पर्सनली बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। नाउ मदर, मे आई हैव द कैरेज व्हेन आई गो। तो जो जेन है वो अपनी मदर से पूछ रही हैं कि जब मैं जाऊं तो मैं कैरेज ले जाऊं। बेटा पहले जो ये 17वीं सेंचुरी में नोवेल लिखा गया है, जो बहुत ही पुरानी बात है। तो पहले बेटा कैरेज चलती थी, जिसे हम घोड़ा गाड़ी भी बोलते थे। तो क्या मैं जब मैं जाऊं तो क्या मैं कैरेज ले जा सकती हूँ? उसने अपनी मदर से परमिशन ली। नो माई डियर, नहीं मेरी प्रिय। यू बेटर गो ऑन हॉर्स बैक। तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि यदि तुम हॉर्स बैक मतलब घोड़े से जाओ, घुड़सवारी करके जाओ। इट सीम्स लाइकली टू रेन एंड देन यू मस्ट स्टे ऑल नाइट। यहाँ पर जो मिसेस बीनेट हैं वो मनी मन बहुत ज़्यादा खुश हैं। शी वॉज वेरी हैप्पी टू हियर अबाउट द डिनर विद टू सिस्टर्स ऑफ मिस्टर बिंगले। मतलब जब उन्होंने लेटर को सुना तो उस लेटर को सुनकर जो मिसेस बीनेट हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और वो मनी बन बहुत ज़्यादा खुश हैं और उनका प्लान है कि इट सीम्स लाइकली टू रेन। वो ये चाहती हैं कि शाम को बारिश हो जाए एंड देन यू मस्ट स्टे ऑल नाइट, और तुम्हें पूरी रात वहाँ पर रुकना पड़े। दैट वुड बी अ गुड स्कीम। ये मतलब ये जो एलिजाबेथ सेकंड डॉटर ये कह रही हैं डैट वुड बी ए गुड स्कीम, डैट वुड बी ए गुड आइडिया। ये एक अच्छा प्लान हो सकता है या होगा इफ़ यू आर श्योर, यदि आप श्योरिटी ले रही हो, मतलब आप निश्चित रूप से कह रहे हो। दे वॉन्ट सेंड हर होम, कि वो उसको घर नहीं भेजेंगी। अपनी मदर की बात को सुनकर यहाँ एलिजाबेथ ने कहा है। आई हैड मच रैदर गो इन द कोच। अब जेन कह रही हैं कि मेरे लिए अच्छा होगा कि मैं कोच को ले जाऊँ अपने साथ। बट माई डियर, मदर यहाँ पर उसको इंटरप्ट करती हैं। बट माई डियर, लेकिन मेरी प्रिय, योर फादर कैन नॉट स्पेयर द हॉर्सेज। मतलब आपके जो फादर हैं वहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा हॉर्स नहीं है, मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा कोच नहीं है, तुम्हें अकेले ही जाना होगा। हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी a little after Jane left home। थोड़े समय बाद जो जेन है वो घर छोड़ देती है, मीन्स डिनर के लिए चली जाती है। और देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं जेन अकेले ही हॉर्स राइड करके जा रही हैं। इट बिगेन टू रेन हार्ड, और तभी क्या हो जाती है, बारिश शुरू हो जाती है, बहुत तेज़ बारिश होती है। द रेन कंटिन्यूड, बारिश चलती रहती है। द होल इवनिंग, पूरी शाम। विदाउट इंटरमिशन विदाउट स्टॉपिंग मतलब बिना रुके बारिश होती रहती है। जेन सर्टेनली कुड नॉट कम बैक, और यहाँ पर उसकी माँ कहती हैं कि अब सर्टेन है, यह निश्चित है
कि जेन वापस नहीं लौटेगी, मीन्स वो रात को वहाँ रुक जाएगी। हर सिस्टर्स वर अनईजी फॉर हर, लेकिन उसकी मदर तो ये सब जानकर, ये सब अपने मन में प्लान बनाकर काफ़ी खुश हैं, लेकिन उसकी सिस्टर्स खुश नहीं हैं। वो नहीं चाहती कि जेन वहाँ पर रात को रुकें। हर सिस्टर्स वर अनईजी फॉर हर, उसकी सिस्टर उसके लिए परेशान हैं। हर मदर वॉज डिलाइटेड दैट हर प्लान वर्क सो वेल, लेकिन उसकी जो माँ हैं मिसेस बीनेट, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। डिलाइटेड माने खुश होना, हैप्पी, दैट हर प्लान हैड वर्कड सो वेल, कि उनका प्लान बहुत अच्छे से काम कर रहा है। वो यही तो सोच रही थी और उनका प्लान क्या हो गया, सक्सेस हो गया। तो वो बहुत ज़्यादा खुश है कि उनका प्लान बिल्कुल सही तरीके से वर्क कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट डे, हियर इज़ अ लेटर फ्रॉम जैन बीनेट। अब यहाँ पर एक लेटर मिला है जो जैन बीनेट ने लिखा है। किसके लिए? माई डियरेस्ट लीजी, एलिजाबेथ के लिए। लीजी इज़ द पेट नेम ऑफ एलिजा नेम इन द स्टोरी, एलिजाबेथ इन द स्टोरी। जो एलिजाबेथ सेकंड डॉटर है उसका किट नेम, उसका जो पेट नेम है वो क्या है? लीजी। तो वो लीजी के लिए लेटर लिख रही हैं। माई डियरेस्ट लीजी, आई फाइंड माई सेल्फ वेरी अनवेल दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर जो जेन है वो बता रही है कि इस सुबह मैं अपने आप को काफ़ी अनवेल फील कर रही हूँ, मीन्स अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। विच आई सपोज इज टू बी इम्पुटेड टू माई गेटिंग वेट थ्रू यस्टरडे। और यहाँ पर वो कह रही हैं कि ये सब किससे हुआ है? बारिश में भीगने से हुआ है। सी वॉज फीलिंग अनवेल ड्यू टू वेट इन द रेन यस्टरडे इवनिंग। शाम को वो क्या हुई थी? बारिश में भीग गई थी, इस वजह से वो काफ़ी क्या है? परेशान है, अनईजी फील कर रही है, अनवेल फील कर रही हैं। माई काइंड फ्रेंड्स विल नॉट हियर ऑफ माई रिटर्निंग टिल आई एम बेटर। और जो मेरी काइंड फ्रेंड्स हैं, कौन है काइंड फ्रेंड्स? टू सिस्टर्स ऑफ मिस्टर बिंगले। वो मुझे अलाउ नहीं कर रही, परमिशन नहीं दे रही जब तक मैं ठीक ना हो जाऊँ घर वापस आने की। मीन्स वो मेरी जो फ्रेंड्स हैं वो कह रही हैं कि जब तक मैं बिल्कुल सही नहीं हो जाऊँगी तब तक घर नहीं जाऊँगी। दे इंसिस्ट आल्सो ऑन माई सीइंग मिस्टर जोन्स। और वो मुझे इंसिस्ट कर रही हैं कि मैं मिस्टर जोन्स से मिलकर जाऊँ। मिस्टर जोन्स इज़ ड्रग स्मगलर। Therefore, do not be alarmed if you should hear of this having been to me, and accepting a short thought and headache, there is not much the matter with me। अब वो कह रही है कि तुम मेरे बारे में सुनकर ज़्यादा परेशान मत होना। मुझे क्या है? थोड़ा गले में दर्द है और हेडेक है। शॉर्ट थॉट मीन्स बेटा कॉट कफ, मतलब कॉट कोल्ड, जुकाम हो जाना, सर्दी जकड़ जाना सर्दी से, तो वो है कफ हो जाना गले में, और हेडेक है, सिर में दर्द है। देयर इज़ नॉट मच द मैटर विद मी, योर्स एवर जैन बीनेट। तो ये लेटर जो है वो जैन बीनेट ने लिखा है अपनी सिस्टर एलिजाबेथ के लिए। अब लेटर को सुनकर ये जो फादर है, हियर इज़ मिस्टर बीनेट, वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। वेल माई डियर, इफ़ जैन फॉल्स डेंजरसली इल और डाइज। अरे मेरी प्रिय, मतलब वो अपनी बेटी से कह रहे हैं कि यदि इफ़ जैन फॉल्स डेंजरसली इल, यदि वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती और मर जाती, इट वुड बी अ कम्फर्ट टू नो दैट इट वॉज ऑल इन परस्यूट ऑफ मिस्टर बिंगले। तो वो कह रहे हैं कि ये तो क्या होता, यह सब किसके रीज़न से हुआ है? मिस्टर बिंगले के रीज़न से हुआ है, उनकी सिस्टर्स की वजह से हुआ है। ना वो उनको डिनर पर इनवाइट करते और ना ही वो बारिश में भीगते और बीमार पड़ते। ओ पीपल डू नॉट डाई और लिटिल ट्रिफलिंग कोल्ड्स। अब यहाँ पर जो मदर हैं मिसेस बीनेट, वो कह रही हैं आप भी क्या बात कर रहे हैं? ओ पीपल डू नॉट डाई ऑफ लिटिल ट्रिफलिंग कोल्ड्स, जो मतलब लोग हल्के सर्दी जुकाम से मरते नहीं हैं। सी विल बी वेल टेकन केयर ऑफ देयर, उसकी वहाँ पर बहुत अच्छे से क्या हो रही होगी? केयर हो रही होगी।
मीन्स वो इस बात को, इस मैटर को ज़्यादा सीरियस नहीं ले रही हैं। वो कह रही हैं हल्का सा बुखार है, फीवर है या हेडेक है, वो सही हो जाएगा। जो मिस्टर बिंगली की सिस्टर्स हैं वो उसकी बहुत ज़्यादा केयर कर रही होंगी। लोग हल्के से सर्दी जुकाम से क्या नहीं होते, डाई नहीं होते, मतलब मरते नहीं हैं। वो मिस्टर बीनेट से बोल रही हैं। नाउ एलिजाबेथ। एलिजाबेथ फीलिंग एनेक्सियस। अब जो उसकी सिस्टर है एलिजाबेथ, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई है अपनी सिस्टर के बारे में सुनकर। फीलिंग एनेक्सियस मतलब काफ़ी चिंतित है। वॉज डिटरमाइंड टू गो टू हर सिस्टर, और निश्चित रूप से मतलब वो डिटरमाइंड है अपनी बहन के पास जाने के लिए। शी वॉज ऑल्सो द प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द स्टोरी एंड you can say she is the heroine of the story। एलिजाबेथ प्रोटोगोनिस्ट है स्टोरी की, और उसे आप इस स्टोरी का हीरोइन मानकर चलिए। सो शी वॉज डिटरमाइंड टू गो टू हर सिस्टर, इसलिए वो अपनी बहन के पास जाने के लिए भी डिटरमाइंड है। द कैरेज वॉज नॉट अवेलेबल, मतलब जो घोड़ा गाड़ी है वो भी अवेलेबल नहीं है, उपलब्ध नहीं है। एंड एज शी वॉज नो हॉर्स वुमेन, और वो हॉर्स वुमेन नहीं है, मीन्स शी डिड नॉट नो हाउ टू राइड द हॉर्स, वह नहीं जानती कि घोड़े पर घुड़सवारी कैसे की जाती है। वॉकिंग वॉज हर ओनली अल्टरनेटिव्स, एंड उसे कैसे जाना पड़ेगा, पैदल जाना पड़ेगा, केवल पैदल चलकर जाना ही उसके पास एक साधन है। मीन्स प्रॉब्लम वॉज देयर that there is no means of transport to go there। मीन्स वहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि जाने का कोई भी साधन नहीं है। there is no carriage and she did not know how to ride the horse। कैरेज भी नहीं है, इसके साथ साथ वो यह नहीं जानती कि घोड़े पर सवारी कैसे की जाती है। एंड शी हैज़ ओनली वन ऑप्शन टू गो एंड शी हैज़ ओनली वन ऑप्शन ओनली वॉकिंग। उसके पास केवल एक ही ऑप्शन है, पैदल चलकर जाना। नाउ एलिजाबेथ, आई शैल बी फिट टू सी जेन। मैं जेन को देखने के लिए जाऊंगी और पैदल ही जाऊंगी। विच इज़ ऑल आई वॉन्ट, केवल मैं इतना चाहती हूँ कि मुझे जेन से मिलने जाना है। नाउ मिसेस बीनेट अपनी डॉटर, सेकंड डॉटर से बोल रही हैं, हाउ कैन यू बी सो सिली, मतलब तुम इतना मूर्खता वाला काम कैसे कर सकती हो। हाउ कैन यू डूइंग सो फुलिसली, इतना फुलिसली वर्क कैसे कर सकती हो। यू विल नॉट बी फिट टू बी सीन व्हेन यू गेट देयर, तुम वहाँ जाओगी तो ये अच्छा नहीं हुआ। इट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो वहाँ पर एलिजाबेथ ने रिप्लाई किया है कि मैं वहाँ जाने के लिए फ़िट हूँ और बस इतना ही मैं चाहती हूँ कि मुझे वहाँ जाना है। नाउ फादर अपनी सेकंड डॉटर से कुछ कह रहे हैं। इज़ दिस अ हिंट टू मी लीजी टू सेंड फॉर द हॉर्सेज। वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें हिंट देना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए हॉर्स भेज देता हूँ। नो आई डोंट विश टू अवॉइड द वॉक, नहीं मैं पैदल चलने से बचना नहीं चाहती। द डिस्टेंस इज़ नथिंग व्हेन वन हैज़ अ मोटिव। यहाँ पर जो एलिजाबेथ हैं वो कह रही हैं कि डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखती जब इंसान का क्या बन जाए, मोटिव बन जाए, लक्ष्य बन जाए। मीन्स वो अपने आप में डिटरमाइंड है, कितनी भी दूरी हो वो पैदल चलकर तय करना जानती हैं। सो हियर इज़ द डायलॉग ऑफ एलिजाबेथ, द डिस्टेंस इज़ नथिंग व्हेन वन हैज़ अ मोटिव। जब एक इंसान का एम होता है, लक्ष्य होता है, तो वहाँ पर डिस्टेंस कोई मैटर नहीं करती, दूरी कोई मैटर नहीं करती। ओनली 3 miles आई शैल बी बैक बाई डिनर। वो यहाँ पर वो बताती हैं कि जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो केवल कितनी है, 3 miles। आई शैल बी बैक बाई डिनर, और मैं शाम तक क्या करूँगी, घर वापस आ जाऊँगी। मीन्स डिनर के टाइम तक मैं घर पर वापस आ जाऊँगी। हियर आर सम पिक्चर्स। एलिजाबेथ इज़ गोइंग, देखिए यहाँ पर एलिजाबेथ जा रही हैं और वो काफ़ी सफ़र कर रही हैं, पैदल ही जा रही हैं। हियर आर सम पिक्चर्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड द स्टोरी very well। I shall continue the story
in next video. And today's that is all. So thank you beta, and meet in next video. And in end of the story I want to tell you, if you have any query then you ask me. So thank you for today, and meet in next video.